کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بدستور عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں۔ برائلر مرغی کا گوشت 18 روپے مہنگا ہو چکا ہے، فی کلو قیمت 593 روپے ہو گئی ہے۔ فارمی انڈے 3 روپے مہنگے، قیمت 265 روپے فی درجن مقرر ہو گئی ہے، جبکہ سبزیوں کے نرخوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آلو 100، ٹماٹر 150، پیاز 60 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے ہیں، جبکہ ادرک 1100، لہسن 450 اور مٹر 300 روپے فی کلو تک دستیاب ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں زاہد عابد سے۔ جی زاہد۔ جی بالکل، مارکیٹ میں چکن برائلر گوشت کی قیمت میں چند روز سے کمی کا رجحان دیکھا جا رہا تھا، لیکن 2 روز ایسے ہو چکے ہیں جس میں اس میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ آج بھی چکن برائلر گوشت کی قیمت میں 18 روپے فی کلو اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کے بعد 593 روپے فی کلو آج اس کا نرخ مقرر کیا گیا، اور مارکیٹ ذرائع کے مطابق یہ 600 روپے فی کلو کی حد کی جانب دوبارہ اس کی قیمت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جبکہ انڈوں کی بھی اسی قسم کی صورتحال ہے، انڈے روزانہ کی بنیاد پہ مہنگے ہو رہے ہیں، آج 3 روپے فی درجن مزید مہنگے ہو کر 265 روپے فی درجن اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ جبکہ سبزیوں کی بھی اسی قسم کی صورتحال ہے، جس میں آلو کی قیمت 100 روپے فی کلو، پیاز 60 روپے فی کلو اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 110 روپے، اور اس کا جو مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے تقریباً 140 سے 150 روپے فی کلو تک بیچے جا رہے ہیں۔ لہسن اور ادرک کی قیمت گزشتہ چند ماہ سے انتہائی سطح پر دیکھی جا رہی ہے۔ لہسن 450 روپے فی کلو اور ادرک 1100 روپے فی کلو اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہے، جبکہ 300 روپے فی پاؤ تک بھی بیچا جا رہا ہے۔ اسی طرح پھول گوبھی 180 روپے فی کلو، شملہ مرچ 150 روپے، مٹر 300 روپے فی کلو، ٹینڈے 140 روپے فی کلو مارکیٹ میں بیچے جا رہے ہیں۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق گزشتہ چند روز سے جو بارشوں کا شدید سلسلہ جاری ہے، اس کی وجہ سے سبزیوں کی فصل متاثر ہو رہی ہے، اور جس روز بارش ہوتی ہے اس کی وجہ سے سبزیوں کی سپلائی بھی متاثر ہوتی ہے، اور یہ وجہ ہے جس کی پیش نظر سبزیوں کی قیمت میں نہ صرف ابھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے بلکہ آنے والے دنوں میں مزید اضافے کا خدشہ بھی موجود ہے، جبکہ چکن برائلر گوشت کی قیمت میں بھی تیزی کا رجحان ہی دیکھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ صارفین کو بجلی کے 11,000 وولٹ کے جھٹکے، بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 3 روپے سے 7 روپے 96 پیسے فی یونٹ تک اضافہ کر دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ صارفین کو بجلی کے 11,000 وولٹ کے جھٹکے، بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 3 روپے سے 7 روپے 96 پیسے فی یونٹ تک اضافہ۔ نئی قیمتوں کے اطلاق سے صارفین پر 3,495 ارب بوجھ پڑے گا۔ نیپرا نے ٹیرف اوسط 4 روپے 96 پیسے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری دی تھی۔ نیپرا نے رواں مالی سال کے لیے بجلی کے ٹیرف میں اضافے کی منظوری دی تھی، اور نیپرا وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ کرے گا۔ نیپرا سبسڈی ایڈجسٹمنٹ کو مد نظر رکھ کر سماعت کے بعد فیصلہ کرے گا۔ فیصلے کے بعد وفاقی حکومت اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کرے گی۔ 100 یونٹ والے گھریلو صارفین کے لیے بجلی 3 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تجویز ہے۔ 101 سے 200 یونٹ والے صارفین کے لیے 4 روپے فی یونٹ اضافے، جبکہ 201 سے 300 یونٹ تک 5 روپے، 301 یونٹ سے 400 یونٹ تک 6 روپے 50 پیسے، جبکہ 400 سے 700 یونٹ والے صارفین کے لیے 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ اضافے کی تجویز ہے۔ اضافے کے بعد بجلی کا اوسط فی یونٹ ٹیرف 35 روپے 42 پیسے سے بڑھ کر 42 روپے 72 پیسے فی یونٹ ہو جائے گا۔ سیلز ٹیکس کے نفاذ کے بعد فی یونٹ قیمت 50 روپے سے زائد ہو جائے گی۔ بنیادی قیمت میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے کرنے کی تجویز ہے، اور منظوری کے بعد جولائی کے بقایا جات عوام سے وصول کیے جائیں گے۔ چینی اور آٹے کے مہنگے داموں فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ چینی 150 روپے فی کلو مل رہی ہے، جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2,900 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ قیمتوں میں مزید تیزی کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے زاہد عابد کی رپورٹ۔ چینی اور آٹے کے نرخوں میں تیزی کا رجحان برقرار۔ شہر بھر میں چینی 145 سے 150 روپے فی کلو تک بیچی جا رہی ہے۔ 3 ہفتوں میں چینی 50 روپے فی کلو تک مہنگی ہو چکی۔ تھوک مارکیٹ میں چینی کا ریٹ 138 روپے فی کلو ہے۔ شوگر ملز ریٹ 13,500 روپے فی 100 کلو ہے۔ آٹے کے دام بھی بے لگام۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2,900 روپے تک پہنچ گیا۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1,450 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 2,300 روپے میں دستیاب ہے۔ کھلا سرخ آٹا 140 اور سفید فائن آٹا 150 روپے فی کلو ہے۔ چکی کا آٹا 170 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ عوام کہتے ہیں انتظامیہ کو کم از کم اشیاء خورونوش کی قیمتیں تو کنٹرول کرنی چاہیے۔ سچی مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، اتنی مہنگائی ہے کہ انسان جتنی تنخواہ ملی ہے نا اس میں تو گزارا ہے ہی نہیں۔ ساری چیزوں میں سے آٹا سستا تھا، جو کہ اب بہت مہنگا ہو چکا ہے، غریب کی پہنچ سے باہر ہے۔ آٹا، چینی،
इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं कि सुबह रेट कुछ होता है, शाम में कुछ होता है। मार्केट जराये के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम की बढ़ती कीमत के जवाज पर आटा महंगा किया जा रहा है और मजीद महंगाई का खदशा भी मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महंगाई की हफ्तावार शरह 29.16% रिकॉर्ड, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान टमाटर, दालें, अंडे और चीनी समेत 30 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सुर्ख मिर्च और टमाटर सबसे ज़्यादा महंगे हुए। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। महंगाई ट्रेन का नॉन स्टॉप सफर जारी। महंगाई की हफ्तावार शरह 29.16% रिकॉर्ड। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान टमाटर, दालें, अंडे और चीनी समेत 30 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सुर्ख मिर्च और टमाटर सबसे ज्यादा महंगे हुए। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान टमाटर की फी किलो कीमत में 26 रुपए से जायद का इजाफा हुआ। चीनी 6 रुपए 55 पैसे फी किलो महंगी हुई। अंडों की फी दर्जन कीमत 11 रुपए से जायद बढ़ी। दाल मसूर 2 रुपए, दाल चना 50 पैसे, दाल माश 17 पैसे फी किलो महंगी हुई। 200 ग्राम सुर्ख पिसी हुई मिर्च 43 रुपए 36 पैसे महंगी हुई। LPG का घरेलू सिलेंडर तकरीबन 10 रुपए, गुड़ 4 रुपए, ताज़ा दूध 35 पैसे फी किलो महंगा हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ता भर में 9 अशिया की कीमतों में कमी और 12 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब काबीना ने तनख्वाह और पेंशन में वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के मुजाफी इजाफा कर दिया है। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफा कर दिया गया है। देखिए मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में पंजाब काबीना का 21वां इजलास हुआ। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा करके वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के मुसावी कर दिया गया। तनख्वाहों में इजाफा मुलाजमीन की मौजूदा बुनियादी तनख्वाह पर होगा। पंजाब काबीना ने पेंशन में 17.5% इजाफे की मंजूरी दी। महकमा आबपाशी के लिए सैलाब के दौरान जरूरी अखराजात के लिए 4 अरब 40 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी। इजलास के बाद सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर ने बताया कि ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया है। पेंशन में 17.5% इजाफा हुआ है। ग्रेड 1 से 16 तक के पंजाब के सरकारी मुलाजमीन थे, उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफे का फ़ैसला किया गया और जो ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफे का फ़ैसला किया गया। आमिर मीर का मजीद कहना था कि रेस्क्यू 1122 के लिए 2 हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। रेस्क्यू 1122 के लिए एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और एक जो है एयर एम्बुलेंस, यानी एमरजेंसी में मरीज़ को अगर एयरलिफ्ट करना पड़ता है तो उसके लिए। कबीना के इजलास में मुहर्रम उल हराम के दौरान वज़रा को मुतालिका डिवीजन में ड्यूटियां तफवीज़ करने का फैसला भी किया गया। हालिया बारिशों के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया को भी बिलाखिर ख्याल आ गया। दरिया के किनारों और बारिशी पानी में नहाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, जबकि बारिशों और सैलाब के खदशे के पेश नज़र इंतज़ामी अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई। तफसीलात इमरान अकबर की रिपोर्ट में देखिए। लाहौर के बासी दरियाए रावी के किनारों से दूर रहें। ज़िलाई इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। रावी किनारे हर किस्म की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। मरासिल के मुताबिक शहरी दरिया पर नहाने, कश्ती रानी या किसी भी मकसद के लिए मत जाएं। किसी भी किस्म की तफरीही या कारोबारी सरगर्मी के लिए भी दरिया के करीब जाना ममनू करार। शहरियों को बच्चों पर कड़ी नजर रखने, नहाने जाने या खेलने से रोकने की हिदायत कर दी। दरिया किनारे बसने वाले खानदानों और जानवरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की अपील की गई। DC लाहौर की हिदायत पर इंतजामी अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। मुलाजमीन को हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे ड्यूटी का पाबंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। DC लाहौर राफिया हैदर कहती हैं कि हंगामी हालात के पेश नजर अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख की गयी। तमाम इंतजामी अफसरान फील्ड में मौजूद जमीनी हकाइक पर नजर रखें। हंगामी हालात में किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि मुश्किल की घड़ी में अवाम के ताउन से ही नुकसान से बचा जा सकता है। ज़िलाई इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। शहर में मानसून की मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। दरियाए रावी में सैलाब का खतरा है। इमदादी टीमें तैयार हो गई हैं। दरियाए रावी में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। दरियाए रावी के इतराफ में मौजूद झोंपड़ियाँ ताहाल खाली नहीं करवाई जा सकी हैं।
शहर में मानसून की मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। दरिया रावी में सैलाब का ख़तरा मौजूद है। इमदादी टीमें तैयार हैं, जबकि दरिया रावी में पानी की सतह मज़ीद बुलंद होने का खदशा है। दरिया रावी के एतराफ़ में मौजूद झोंपड़ियाँ ताहाल खाली नहीं करवाई जा सकी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात की जानिब से 23 से 29 जुलाई तक जो है वो बारिशों का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी लाहौर में शदीद बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई थी, जबकि इसी हवाले से रावी में जो है वो दरमियानी दर्जे से ऊपर दर्जे का सैलाब जो है वो उसके खदशे का इजहार किया गया PDMA की जानिब से। जबकि इस वक्त जो है वो शादरा के मुकाम से 22,000 क्यूसिक का जो पानी का रेला है वो रावी के मुकाम से जो है वो गुजर है। इसी तरह बलोकी से 45,000 और रजिस्टर के इलाके से जो है वो 31,000 पानी क्यूसिक का जो रेला है वो गुजर रहा है। जबकि PDMA की जानिब से मज़ीद बारिशों की पेश नज़र जो है वो ऊंचले दर्जे का सैलाब जो है वो भी ज़ाहिर किया गया, उसके भी खदशात जो है वो ज़ाहिर किए गए हैं। जबकि रावी के इर्द गिर्द जितनी भी झोंपड़ियाँ थी उनको ताहाल जो है वो ख़त्म नहीं करवाया जा सका। शहरियों को यहाँ से महफूज मुकामात पर मुंतकिल जो है वो नहीं किया जा सका। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो पीछे जो है वो अभी भी रावी के किनारे जो है वो झोंपड़ियाँ मौजूद हैं। शहरी जो उनसे है यहाँ पर रिहाइश पजीर है उनको जो है वो मुंतकिल जो है वो महफूज मुकामात पर नहीं किया गया। जबकि रेस्क्यू का अमला भी यहाँ पर मौजूद है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जो मुतल्लिका इदारे हैं वो भी यहाँ पर हाई अलर्ट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू की कश्तियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हर वक्त यहाँ पर मौजूद रहती हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेस्क्यू भी यहाँ पर जो है वो हाई अलर्ट नज़र आ रही है। 23 से लेकर 29 जुलाई तक जो है वो बारिशों की पेशगोई की गई है। जबकि PDMA की जानिब से जो है वो तमाम मुतल्लिका अदारों को हाई अलर्ट भी रहने का इम्कान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शहर का मौसम गर्म, हब्स और गर्मी की कैफियत बरकरार है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात की आज से 29 जुलाई तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई है। PDMA ने अगले 48 घंटों में दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा जाहिर कर दिया है। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगी सामिया सईद। जी सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो सुबह सवेरे से यही देखा जा रहा है कि सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो जारी है, लेकिन हब्स और गर्मी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा ही देखा जा रहा है और शदीद हब्स और गर्मी जो है वो यहाँ पर महसूस की जा रही है। लाहौरियों के जो चेहरे हैं वो भी हब्स और गर्मी के बाइस एक बार फिर मुरझा से गए हैं। लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिशों की नवीद भी सुना दी गई है और महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज से लेकर 29 जुलाई तक जो है वो वक्फे से बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ताहम बारिशों के पेश नज़र PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और PDMA की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुसलसल बारिशों के पेश नज़र यही देखा जा रहा है कि दरियाओं में जो पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है। दरियाए रावी, चनाब और जहलम में अगले 48 घंटों में जो है वो दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ताहम इंडिया के जो डैम्स हैं उनमें भी ख़तरनाक किस्म का जो है वो सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो यही देखा जाएगा कि अगर मुसलसल बारिशें होती हैं तो सैलाब का जो खदशा है वो भी बढ़ सकता है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर के दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो आज 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। तो PDMA की जानिब से जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि दरियाओं के करीब जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं उनका जल्द अज जल्द खात्मा किया जाए, शहरियों को जल्द अज जल्द किसी सेफ मकाम पर मुंतकिल किया जाए और किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। जी बहुत शुक्रिया सामिया। मानसून की बारिशों से डेंगू के खतरात भी मंडलाने लगे हैं। 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू के 2 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मेयो गंगाराम समेत मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डेंगू के 13 मुश्तबा मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 88 तक पहुँच गई है। चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू के 2 मरीज बच्चे ज़ेर इलाज हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल।
جی بالکل، مانسون کی بارشوں کے بعد کھڑا پانی ہونے کی وجہ سے ڈینگی لاوا کی جو افزائش ہے اس میں مسلسل جو اضافہ ہے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈینگی کے کنفرم مریض ہیں اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں ڈینگی وائرس کے 2 کنفرم مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ چلڈرن ہسپتال میں بھی جو 2 کنفرم جو مریض ہیں بچے ہیں وہ زیر علاج ہیں، جس میں سے ایک بچہ اور ایک بچی شامل ہے، جبکہ گنگا رام ہسپتال سمیت دیگر ہسپتالوں میں بھی ڈینگی کے جو کنفرم مریض ہیں اس وقت زیر علاج ہے، جبکہ دوسری جانب محکمہ صحت کی جو ٹیمیں ہیں ان کی جانب سے ڈینگی سرویلنس نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے ڈینگی لاوا کی جو افزائش ہے اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جو محکمہ صحت کی جو ٹیمیں ہیں ان کی جانب سے ڈینگی SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے شہریوں کے اوپر جو FIR ہے یہ بھی کروائی جا رہی ہیں اور نوٹسز بھی جاری کیے جا رہے ہیں، اور اب تک تقریباً 47,000 سے زائد جو افراد ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ تقریباً 2300 سے زائد افراد پر FIR درج کروائی جا چکی ہے اور 63 افراد کو گرفتار بھی کرایا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ظاہر منیر کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شہر میں تقریباً 30,000 سے زائد ڈینگی ہاٹ سپاٹ ہے جن کو مکمل طور پر فوکس کیا جا رہا ہے، اور جس جگہ سے ڈینگی لاوا برآمد ہو رہا ہے وہاں پہ ڈینگی اسپرے بھی کیا جا رہا ہے۔ اب شہریوں کو بھی چاہیے کہ جو ڈینگی SOPs بنائے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد کریں تاکہ رواں سال میں ڈینگی وائرس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے بلال، شکریہ آپ کا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر بادشاہی مسجد میں تبرکات مقدسہ کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ نگراں وزیر اوقاف اسفر علی ناصر کمیٹی کے کنوینر، وزیر بلدیات عامر میر، معاون کنوینر نامزد کمیٹی کے دیگر ممبران میں سیکٹری مواصلات، سیکٹری آرکیوز اور کمشنر لاہور اور ڈائریکٹر لاہور میوزیم شامل۔ کمیٹی تبرکات مقدسہ کو متبادل مقام پر رکھنے اور مناسب دیکھ بھال سے متعلق اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات کیا ہیں یہ بتائیں گے راہیل علی۔ جی راہیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بادشاہی مسجد میں تبرکات مقدسہ کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے کمیٹی جو ہے تشکیل دے دی گئی ہے۔ نگران وزیر ہاؤسنگ اوقاف و مذہبی امور بیرسٹر اسفر علی ناصر کمیٹی کے کنوینر ہوں گے، جبکہ وزیر اطلاعات اس کمیٹی کے حصہ ہوں گے۔ اس ضمن میں نگران وزیر اعلیٰ آفس سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے حالیہ دورہ بادشاہی مسجد کے دوران تبرکات مقدسہ سیکشن کی حالت اظہار پر جو ہے وہ برہمی کا اظہار کیا تو فوری طور پر اس سیکشن کی صورتحال بہتر بنانے کی جو ہے وہ ہدایات جاری کی تھی، جس پر جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی جو ہے وہ تبرکات کو متبادل مقام پر رکھنے مناسب دیکھ بھال کے متعلق اپنی سفارشات جو ہے وہ پیش کرے گی۔ وزیر اوقاف کا کہنا یہ ہے کہ تبرکات مقدسہ کی بہترین انداز میں دیکھ بھال کا موقع ہمارے لیے باعث افتخار ہے، اور سیکٹری اوقاف و مذہبی امور پنجاب کمیٹی کے سیکٹری ہوں گے۔ دیگر ممبران میں سیکٹری مواصلات، سیکٹری آرکائیو، کمشنر لاہور اور ڈائریکٹر لاہور میوزیم بھی جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے راہیل، بہت شکریہ۔ SSP انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ جینڈر سیل کو مطلوب اشتہاری ملزمان کی عدم گرفتاری پر برہمی کا اظہار کیا گیا۔ ڈاکٹر انوش مسعود کہتی ہیں کہ خواتین اور بچوں سے زیادتی کے واقعات کی تحقیقات میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں زین علی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، SSP انویسٹیگیشن کی زیر صدارت سیل کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا ہے، اور اجلاس میں فوکل پرسن سب انسپیکٹر انم اشفاق سمیت تمام ڈویژنل جینڈر سیل انچارجز نے شرکت کی ہے۔ اس اجلاس میں ڈاکٹر انوش مسعود کا زیر تفتیش مقدمات کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا اور پینڈنگ مقدمات پر انچارجز کی سرزنش بھی کی گئی ہے۔ جینڈر سیل کو مطلوب اشتہاری ملزمان کی عدم گرفتاری پر اظہار ناراضگی بھی کی ہے، جبکہ خواتین سے زیادتی کے واقعات کی رپورٹ پر خود موقع پر پہنچنے اور اپنی نگرانی میں شواہد اکٹھے کرنے کی ہدایتیں وہ کی گئی ہیں۔ اس موقع اجلاس کے دوران ڈاکٹر انوش مسعود کا کہنا تھا بچوں سے بدفعلی، خواتین سے اجتماعی زیادتی کے مقدمات کی تفتیش میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ دوران تفتیش میرٹ پر ہرگز سمجھوتہ نہ کریں، گناہ گار کو سزا دلوائیں، جبکہ خواتین اور بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث ناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ جی ٹھیک ہے زین، شکریہ آپ کا۔ پنجاب یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ طلبہ کے لیے انٹری ٹیسٹ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مختلف شعبوں میں داخلے کی خواہش مند 30,000 طلبہ کی امتحان میں شرکت۔ انٹری ٹیسٹ میں کامیاب طلبہ کے 25% نمبر میرٹ میں شامل ہوں گے۔ تفصیلات بتائیں گے راہیل علی جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ پنجاب یونیورسٹی نے انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے پہلی دفعہ انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا، جس میں طالبہ اور طالبات کی بہت بڑی تعداد نے جو ہے وہ شرکت کی۔ مختلف شعبہ جات میں جو ہے انٹری ٹیسٹ رکھے گئے ہیں اور طالب علم جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ دینے کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے وہ آج آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی خالد محمود موجود ہیں، ان سے مزید جو ہے وہ تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیں پہلی دفعہ یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، کن کن شہروں میں سینٹر بنائے گئے اور کون کون سے پروگرام ہیں جن کے لیے یہ انٹری ٹیسٹ منعقد کیا گیا؟
हमारे पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एक वैरायटी में है, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, साइंसेज के हैं, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं। एक लार्ज वैरायटी है पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हम ऑफ़र करते हैं। तकरीबन 8,000 सीटें हैं हमारे पास अंडर ग्रेड की। इस साल हमने ये डिसाइड किया कि ये इस टेस्ट का इनकाद हम खुद करेंगे, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी करेगी। आज जो है वो अपनी नौयत का दूसरा टेस्ट है। एक टेस्ट हमने जून के आखिरी हफ्ते में ले लिया जिसमें 41,000 के करीब तलबा तलबात ने शिरकत की। आज का जो टेस्ट है इसके लिए 30,000 के करीब तलबा तलबात रजिस्टर हुए। पाकिस्तान के 15 शहरों में ये टेस्ट होने जा रहा है। आज सुबह का सेशन तकरीबन अब ख़त्म हो रहा है और आफ्टरनून का सेशन भी है। जी, आपने उनकी बात सुनी कि मेरिट बनाने में जो है वो 25% ये एंट्री टेस्ट के मार्क्स जो है वो शामिल होंगे, और जो तालिब इल्मों ने जिन्होंने ये एंट्री टेस्ट दिया है लाहौर समेत मुल्क भर से जो है वो लोगों ने तालिब इल्मों ने इसमें जो है शिरकत की है, उनका जो है वो मेरिट बनेगा और मेरिट पे जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में फिर अंडर ग्रेजुएट जो तालिब इल्म है उनको जो है वो दाखिला दिया जाएगा। जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। सीआईए पुलिस ने लाखों रुपए मालिक का माल मसरूका असल मालिकान के सपोर्ट कर दिया है। इसरा के अदनान को दौरान डकैती लूटे गए 30 लाख रुपए लौटा दिए गए हैं, जबकि एसएसपी सीआईए लाहौर लियाकत अली मलिक ने मुतअद्दिद शहरियों में माल मसरूका तकसीम किया है, जबकि शहरी सुलेमान को 5 लाख, इरफान को 3 और आसिम अली को 2 लाख रुपए उनके हवाले कर दिए गए हैं। सीआईए पुलिस ने लाखों रुपए मालियत का मालो मसरूका असल मालिकान के सपोर्ट कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, सीआईए लाहौर ने डाकू से बरामद होने वाला लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका असल मालिकान के सपुर्द कर दिया है। एसएसपी सीआईए लाहौर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने माल मसरूका तकसीम किया। इचरा के इलाके के घर में होने वाली डकैती की वारदात पेश करके 30 लाख रुपए जो है वो नकदी मुदई अदनान आबिद के सपुर्द किया गया। शहरी सलमान के 5 लाख रुपए, आसम अली के 2 लाख, शहरी इरफान के 3 लाख रुपए इनके जो है वो हवाले किया गया। इसके अलावा मदई नमान मजीद, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद जमील के इनके छीने गए लाखों रुपए जो है वो वापस किए गए। सीआईए पुलिस ने ट्रेस होने वाली वारदातों में बरामद होने वाला ट्रैक्टर, इसके अलावा लोड रिक्शा शहरी रमजान और नमान को जो है वो वापस किया। इस हवाले से एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक का कहना है कि शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एसएसपी कैप्टन लियाकत अली मलिक ने जिन जो है वो तफ्तीशी अफसरान ने और इंचार्जेस ने ये कार्रवाई की उनके लिए जो है वो नकदी इनाम और तरीफी इसनाद का भी ऐलान किया। शहरियों ने भी अपनी जमा पूंजी वापस मिलने पर सीआईए पुलिस का जो है वो शुक्रिया अदा किया। खासतौर पर एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने तमाम तफ्तीशी अफसरान और इंचार्जेस को हुक्म दिया कि जो एक कैटेगरी के शहरी मुलजमान हैं, जो डकैत हैं, उनको जो है वो फॉलो किया जाए, उनके हवाले से जो है वो फरिश्तें बनाई जाए और उनको गिरफ्तार करके जो है वो हवालात में बंद किया जाए। तो इस हवाले से एसएसपी से यही कहना है कि मुलजमान के जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। जल्द जो शहरी मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया जाएगा। उनको हवालात में बंद किया जाएगा। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास डायरेक्टर मादनियात ने इजलास में सूबाई वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग दी। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए हर महकमे को काम करना होगा। महकमा मादनियात में सरमायाकारी आने से मुल्क की मैशत मजबूत होगी। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी, माइंस और मिनरल डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत ये अहम जायजा इजलास हुआ है, जिसमें डीजी माइन और मादनियात में इजलास में सूबाई वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर इब्राहिम मुराद का कहना था कि सालाना माइनिंग लीजेस की तादाद बढ़ाने के लिए मादनियात के नए ज़खायर तलाश करना कलीदी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए हर सूबे और हर महकमे को अपनी इस्तेदादगार को इससे बढ़कर काम करना होगा। इजलास से खिताब करते हुए इब्राहिम मुराद का कहना था कि महकमा माइन और मिनरल्स में बैरून मुल्क सरमायाकारी आने से मुल्क की मईशत यकीनी तौर पर मजबूत होगी और अगर दुरुस्त सिमत का तयन करके मेहनत की जाए तो ये महकमा पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकता है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। डायरेक्टर मादनियात ने इजलास में सूबाई वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग दी है। इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए हर महकमे को काम करना होगा। महकमा मादनियात में सरमायाकारी आने से मुल्क की मैशत मजबूत होगी। निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। डायरेक्टर मादनियात ने इजलास में सूबाई वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग दी है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर शहदा पुलिस के वरसा की फलाह के लिए सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले 3 अहलकारों
केसेस पंजाब हुकूमत को भिजवा दिए गए हैं, जबकि हेड कांस्टेबल मोहम्मद इमरान, कांस्टेबल मुमताज़ अहमद और निसार अहमद का केस शोहदा पैकेज के लिए अरसाल कर दिया गया है, जबकि पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद शहीद अहलकारों के लवाहिकीन को शोहदा पैकेज की मराद हासिल हो जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर शोहदा पुलिस के वर्सा की फलाह के लिए सरगर्म है। दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले 3 अहलकारों के केसेस पंजाब हुकूमत को भिजवा दिए गए हैं। हेड कांस्टेबल मोहम्मद इमरान, कांस्टेबल मुमताज़ अहमद और निसार अहमद का केस शोहदा पैकेज के लिए अरसाल कर दिया गया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर शोहदा पुलिस के वर्सा की फलाह के लिए सरगर्म है। निजी हस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर दिल के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज बंद कर दिया गया है, जबकि सरकारी हस्पतालों में मरीजों को लंबी लिस्ट का सामना है। जिना हस्पताल के कार्डिक सर्जरी यूनिट में दिल के ऑपरेशन ना होने के बराबर गुज़िश्ता 2 माह में सिर्फ 5 मरीजों के ऑपरेशन किए जा सके हैं। सैकड़ों मरीज बाईपास ऑपरेशन के मुंतज़िर हैं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। निजी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर दिल के ऑपरेशन की बंदिश, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को लंबी लिस्ट का सामना। जिना अस्पताल के कार्डिक सर्जरी यूनिट में दिल के ऑपरेशन ना होने के बराबर 2 माह में सिर्फ 5 मरीजों के ऑपरेशन किए जा सके। जिना अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से 2 मॉडल ऑपरेशन थिएटर बनाए गए, ताहम दिल के मरीजों को इन जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर्स में इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। जिना अस्पताल से मरीजों को सरकारी अस्पतालों की बजाय निजी अस्पतालों में मुंतकिल किए जाने का भी इंकशाफ। जिना अस्पताल के कार्डियक यूनिट में दिल के बाईपास ऑपरेशन ना होने से सैकड़ों मरीजों को मुश्किलात का सामना है। हेल्थ कार्ड पर मुफ्त इलाज मुआलजा बंद होने से मरीज खार होने लगे। तो संडे को फंडे बनाने का मिशन जारी है। मुगलपुरा क्रिकेट ग्राउंड में मंचरों का रश बढ़ गया है। नौजवान मौसम की परवाह किए बगैर क्रिकेट खेलने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। नौजवानों का कहना है कि मसरूफियत के इस दौर में छुट्टी का दिन ही इंजॉय करने के लिए बचता है। खेल जिस्मानी तौर पर फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। जी बिल्कुल, आज इतवार का दिन है और मैं इस वक्त मुगलपुरा में एक क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूं, जहां क्रिकेट का जुनून सर चढ़ के बोल रहा है। लोगों की बड़ी तादाद यहां पहुंची है अपना इतवार का दिन मनाने के लिए, क्योंकि तमाम तर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो है वो इतवार के रोज बंद होती हैं, इसलिए हमें ग्राउंड में रश नजर आ रहा है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं और नौजवान भी मौजूद हैं। या क्रिकेट का जुनून जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। चौकों चौकों की बरसात हो रही है, जबकि मुखालफिन की विकेटें उड़ाने का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ कुछ नौजवान प्लेयर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज के हवाले से, खुसूसन इतवार के हवाले से और मैच के हवाले से उनके क्या क्या जज्बात हैं। छुट्टी है तो हम लोग आए हैं खेलने के लिए लाहौर ग्रीफर ग्राउंड में, तो ये है कि इंजॉय हो रहा है, इधर मज़ा भी आ रहा है हम सबको। तकरीबन सुबह 5 बजे के हम लोग आए हुए हैं इधर, तो हमारी कोशिश है कि ये जो नौजवान है ये इस फील्ड में आए ताकि ये बाहर जो नशे वगैरह होते हैं उनसे ये बच सके। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा आज इतवार का दिन कैसा मना रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं छुट्टी का दिन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। जिस तरह हर संडे की तरह हम हर संडे आते हैं ग्राउंड में, कभी इधर आते हैं, मुख्तलिफ ग्राउंड में जाते हैं, आज इधर आए हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि लोग ये कहते हैं कि मसरूफियत के इस दौर में इतवार का दिन ही एक ऐसा दिन होता है जब हम दिल खोल के एंजॉय कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं और तमाम तर दूसरे जो खेल हैं उससे लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। और कुछ नौजवानों का तो ये भी कहना है कि आगे चलकर वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में नुमाइंदगी करते हुए भी नजर आएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया सामा।